Hi everyone, this is Dr. Shah. I'm a sociologist. Today, as all of you know, that we are celebrating International Human Rights Day. And freedom, dignity, liberty, especially human dignity now is at stake. Friends, talking about international human rights, I don't think this is any longer a rocket science wherein we need presentations or we need experts to speak on human rights. We know around us, in our neighborhood, in our community, in our society, in the country, in the region, globally, human rights in one way or the other are being trampled. And scenario, especially for the weaker sections of the society, is quite pathetic and sad. If we try to understand International Human Rights Day, December 10, in the Islamic perspective, friends, जी बेटा, मैं पकड़ूं, okay. In the international, purview, we will see that every religion, including, Deen Islam, gives full credence and gives full importance to the concept of human rights, like Hakukullah and Hakukul Ibad. God, Almighty Allah, may forgive the rights which we owe to God, but never ever, ever and ever, God forgives those rights that we fail against Hakukul Ibad, people's rights and God's rights. More stress, emphasis is being given on what? Hakukul Ibad. This is the beauty of Deen, that people's rights, Hakuk Zaya Mat Karna, has been emphasized, and Allah will not forgive until those against whom you have gone against their rights, you have been against them, you have trampled their dignity. God is not going to forgive you unless and until though they forgive you, they pardon. See the beauty of the concept. Therefore, I always say on every December 10, I would continue to say, friends, that it is not just that we may require knowledge on the thing. There are people who are around us, in our family. We easily, keep trampling their rights. Do you know what's happening in our homes now? Do you even realize? We see violence with these naked eyes happening before you, happening in front of your eyes, happening in your presence. Do we intervene? Do we interfere? We hardly, friends, we hardly. Because family over a period of time has literally turned into a diplomatic institution. Given the financialization of kinship and family, given the financialization of vital institutions of the society, we see family literally turning into a gossip hub, into a political hub, from where violence in one form or the other keeps happening against the weaker one. Sometimes bahu, sometimes beti, sometimes bhabi,
sometimes, ma, but we keep diplomatically avoiding it. ना अब हमें सही को सही कहने की हिम्मत है, ना अब हमें गलत को गलत कहने की हिम्मत है. Family, these days, people have literally turned into cowards. People have turned into political beings. There are no family members any longer. There are political beings living together as family. ये एक institution की बात है. This is what I am talking about, one particular institution. There are n number of other institutions. अगर आप, if we take kinship, where is the kinship? It has gone to dogs. जो आपके सामने आया आप उसी के फौरन वो निकल गया, उसके खिलाफ गिबत शुरू. This is literally the actual aspect of kinship today. And when you require them, they are no longer around. जब शादी है, everyone would expect that you will invite them with full family card. ठीक है. But when you require them, somebody is in a hospital, somebody is dying, somebody is ill, somebody needs help in family, somebody require minuscule favor in family, you are not going to. जो कश्मीरी भाई मुझे देख रहे हैं, कश्मीर के जवान यूथ मुझे देख रहे हैं, दोस्तों आप ये फ़ेरन देख रहे होंगे. ये हमारी पहचान है और हमें इस पर फ़ख्र है. मैं दिल्ली में बैठा हूँ और ये फ़ेरन को मैं बहुत जिसे कहते हैं कि मज़े के साथ फ़ेरन पहनने के मज़े लेता हूँ रोज़. मुझे अच्छा लगता है. इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू माय मदरलैंड. तो आप हैरान मत होइएगा कि दिल्ली में बैठे हैं सर और ये क्या है कि फ़ेरन. मुझे इस फ़ेरन से बड़ा प्यार है. दरअसल बात हो रही थी इंस्टीट्यूशंस की. वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूशंस. फैमिली इज़ गॉन फ्रेंड्स. फैमिली, there is nothing that emotional aspect that is still intact. No, it will be very wrong to argue that family is a family of emotional bonds now. It's a union of finance management now. It is typically financialization of thing. And I would like to welcome Zubair Ahengar Saab, Ansar Saab, Zubi, Muhammad Irfan Bhatt, Nazir Sahab, Arsh A Khan, and Aspir Zada Sahab, Wani Adil Sahab, Idris Manhas Sahab, Bhatt Amir Sahab, Lone Yusuf Sahab, Khalid Bhatt Sahab, many others who have attended this live segment. Friends, after a long time I thought that I should come live and discuss a bit with you. When we talk about international human rights, it's not that you need to require to remember those clause number E and article number this and clause number that. You don't need to. Literally, you will say, why is sir talking like that? Walaikum salam, Engineer Khalid Sahab, Khalid Abbas Sahab. What I am trying to say that आप घर में बैठे, आपके सामने आपके घर में वायलेंस हो रहा है, किसी के राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, किसी के राइट्स मारे जा रहे हैं, किसी की डिग्निटी तार तार हो रही है और आप चुप बैठे. आप सही को सही कहने की हिम्मत नहीं रखते, आप गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं रखते, आप नहीं रखते. तो ऐसा ना, ये कोई कोर्ट कचहरी का वाकया नहीं है दोस्तों, जहाँ पे यू नीड टू कंसल्ट ए लॉयर. आपको घर में क्या करना है? यू नीड टू स्पीक ट्रूथ. काइंडली स्पीक ट्रूथ. आपके सामने जो वायलेंस हो रहा है ना घर के कमज़ोर मेंबर पर, उसको ताने सुनाए जा रहे हैं. कभी वो बहू है, कभी वो माँ है, कभी वो भाभी है, कभी वो बहन है, उसको ताने सुनाए जा रहे हैं आपके सामने और आप आंख बंद करके वहाँ से बड़ा डिप्लोमेटिकली साइड में निकल जाते हैं. सच को सच कहने की हिम्मत नहीं है. तो डिग्निटी और लिबर्टी और फ्रीडम और राइट्स यहाँ घर से शुरू होते हैं दोस्तों, फैमिली से शुरू होते हैं. इसके लिए ना बड़े बड़े सेमिनार्स में बोलने के लिए प्रेजेंटेशंस, पीपीटीज बनाने की ज़रूरत नहीं है. देयर आर सम नॉन हिंदी फ्रेंड्स, मे बी फ्रेंड्स फ्रॉम अफ्रीका, for whom I would like to translate it in English.
that if you want to respect International Human Rights Day in the literal sense, in the practical sense, beyond seminars, workshops, presentations and तकरीरें, फालतू lectures, आपको you will have to start it from your home. आपको घर से शुरू करना पड़ेगा. आपको पहले देखना पड़ेगा आपकी आंखों के सामने क्या बुरा गुजर रहा है. आप वो सच कहने की हिम्मत रखिए. अपने घर से शुरू करिए, फिर अपने मोहल्ले में शुरू करिए, फिर अपने रिश्तेदारों में शुरू करिए, किनशिप. फिर you will come to the institution of religion. आपको पता है, when we try to distinguish today between religious affiliation and religiosity, कितने religious आप हैं, the degree of that religious affiliation is called a religiosity. वो सब फेक है, सब ढोंग है, क्योंकि आप एफिलिएशन को ही रिलीजियोसिटी बता रहे हैं. किसी मज़हब में पैदा होना आपको रिलीजियस नहीं बनाता. आपकी एफिलिएशन बाय डिफ़ॉल्ट बन जाती है बिकॉज आप उस फेथ में पैदा हुए. इट्स नॉट दैट सिंपल एफिलिएशन मेक्स यू रिलीजियस. नो, you are born in a particular religion and that makes you a saint. No, you have to develop that religious ethos in you. You have to develop that sense of that belonging to a particular faith and particular doctrine. And every doctrine in the world, when it comes to religious doctrines, religious traditions rather, now in the modern sense we don't call religions, but there are religious traditions now, more or less. Every religion teaches respecting human rights. There is not a single faith, even atheism, taking atheism as one faith, that teaches us disrespecting humans. No. एंड रास्ता सिंपल है दोस्तों. वालेकुम सलाम जरगर साहब, आप भी लंबे उर्से के बाद, और मैं भी बिल्कुल फ़रन में बनफ्स नफीस दिल्ली में बैठा हूँ. दानियाल अहमद, बेटे मत करिए, शोर मत मचाइए. अर्ज़ ये कर रहा था मैं दोस्तों कि इसके लिए ना ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए यू डोंट नीड अ डिग्री, यू डोंट नीड टू नो पर्टिकुलर क्लॉज एंड आर्टिकल्स. आम जिंदगी में रोज हकूक ज़ाया होते हैं दोस्तों. आपके घर में, आपके अराउंड लोगों के, आपके एट टाइम्स हकूक ज़ाया होते हैं. कल मैं एक एक वीडियो में बात कर रहा था कि घरों में जो बेरोज़गार जवान बैठे हैं दोस्तों, घरों में जो बेरोज़गार जवान बैठे हैं, क्या उन्हें सताया नहीं जा रहा है? उनको कौन सता रहा है? उनको कौन सता रहा है दोस्तों? जी बेटा, उनको सता रहे हैं दोस्तों. उनको हाँ, आप क्या कर रहे हैं बेटा? जी हाँ, उनको सताया जा रहा है. और उनको कौन सता रहा है? उनको सता रहे हैं अपने घर वाले. उनको ताने कौन दे रहा है? अपने घर वाले. उनको परेशान कौन करे? अपने सिबलिंग्स. घर में कोई बड़ा भाई बैठा है और छोटा भाई कमा रहा है. बड़े भाई की डिसीजन अब छोटा भाई लेता है. आपको पता है, लिटरली इट इज कॉल्ड फिनेंशियलाइजेशन ऑफ किनशिप, फिनेंशियलाइजेशन ऑफ फैमिली, वेयर इन अब रिस्पेक्ट, इमोशन, बड़ा छोटा, ये सब चीज़ें बहुत पीछे रह गई हैं दोस्तों. और ब्लड बॉन्ड्स कहते थे ना पहले, ब्लड इज थिकर देन वाटर. सब सॉरी टार, सब झूठ. अब ब्लड इज़ नॉट थिकर देन वाटर. ये सब होता है क्योंकि कुदूरत, नफ़रत जब पैदा हो जाती है ना दिल में, तो रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, वो इमोशंस पीछे छूट जाते हैं. एंड स्पेशली द मटीरियल लस्ट, मटीरियल, दुनिया की हवस, लालच और मादी ज़िंदगी जो मॉडर्निटी ने हमें दिया है, जो तेज़ी से बढ़ती हुई ज़िंदगी ने हमें दिया है. Things have changed drastically, and there is not a single institution that has not come in its grip.
There is not a single institution that is left, friends. That is typically what I want to convey, that it is our responsibility on this International Human Rights Day that we should. Dr. Saiba, Humaira, ye tech limber. There is not a single institution, friends, that is safe. एक इंस्टीट्यूशन, इवन फेथ, इवन रिलीजन उसकी जद में आया है, मटीरियल की जद में है। दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात, अल्लामा इकबाल ने कहा था। और मादियत ने हुकूक बुला दिए, मटीरियल लस्ट ने ह्यूमन राइट्स का डिसरिस्पेक्ट करना सिखा दिया। आपको अगर घर की आप डिप्लोमेसी समझेंगे कि अगर घर का कोई बड़ा, घर का कोई कमाने वाला बाकी लोगों पर अत्याचार करता है, किसी एक पर करता है, सब चुप रहते हैं। इवन एट टाइम्स माँ कहती है कि अगर बहू को डांट रहा है तो डांटने दो, मेरा क्या जाता है, अगर मैं इसके साथ लड़ूंगी तो मुझे नुकसान होगा। घर का दूसरा फर्द कह रहा है कि देखिए इसके साथ उलझना क्यों, यही तो कमा रहा है, इससे मुझे फलानी फ़ायदा होगा, इसी ने तो अभी आईफोन दिलाया। Therefore, हम सब today on International Human Rights Day, as I'm again reiterating and repeating it, let us at least learn to respect human rights. Let us at least learn to understand the very essence of human rights from the very initial level, from the very beginning. That's family, that's kinship, that's friendship. See, friendship as an institution now, you can very well imagine where has it gone. There is a sea of change in the sense of that friendship. And social media, new media, the OTT platforms have changed all that sense. That decorum is gone, and decadence, age of decadence has come. That morality is gone, an age of thinking everything sexually, thinking everything within adult parameters has come, even in young minds. Can you believe that? Things have changed drastically, friends. And as I'm again repeating it, there is not a single institution that is safe now from this mess, from this virus, the virus of modernity, the virus of pan-materialism, the virus of blind rat race to modernization, and race for the material, race for that material accumulation. Things have changed drastically, and in front of you, in your presence, human rights are being trampled every now and then, right in front of you, and you are there watching it as a mute spectator. I am not talking on the political context here. I am typically, talking it socially. In the name of honor abuse and honor crimes are committed throughout the globe, especially in this part of the world. घर की इज्जत के लिए लोग कुछ भी कर लेते हैं, जो सो कॉल्ड इज्जत, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि कोई अपने बच्चे को इतना सताएगा कि वो बच्चा खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाए, और मैं कहूँ घर की इज्जत। आप समझ रहे हैं? देयर आर पीपल जो अपने ईगो के लिए उसे घर की इज्जत का नाम दे देते हैं, ऑनर क्राइम्स कमिटेड करते हैं। देयर आर यूथ who are not earning and are literally abandoned, उनकी ज़रूरतों का कोई ख्याल नहीं रखता। There are youth, especially girls, who are literally not taken care of, उनकी खर्चों का, ज़रूरतों का कोई ख्याल नहीं रखता। और बाद में क्या बोलते हैं हम, अरे आवारा, दरबदर, इसके इतने बॉयफ्रेंड हैं। आप समझ रहे? बोलना आसान है, और घर की जिम्मेदारियां निभाना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि जब आप जिम्मेदार बनते हैं तब आप दूसरों के हुकूक की पामाली नहीं करते, आप दूसरों के हुकूक समझते हैं पहले, और उन हुकूक की इज्जत करते हैं।
आपको पता है डिग्निटी के साथ लोगों को जीने देना, स्पेशली डिपेंडेंट्स को डिग्निटी के साथ जीने देना अपने आप में ह्यूमन राइट्स की एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है। अगर आप घर में कमाते हैं और बाद में जताते नहीं हैं, देयर आर पीपल, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ, जो बाहर शरीफ घूमते फिरते रहते हैं और घर के लिए मॉन्स्टर्स हैं, अपने घर वालों के लिए वबाली जान है, अपने घर वालों के लिए जालिम है और बाहर जेंटलमैन बने फिरते हैं। और देयर आर पीपल जो घर वालों के लिए कुछ करते हैं, बाद में पूरा जताते रहते हैं, जो अपनी फैमिली के लिए कुछ करते हैं, बाद में बच्चों तक को ताने सुनने को मिलते हैं, तुम्हारे लिए फलां दिन ये किया, तुम्हारे फलां दिन ये किया, तुम्हारे लिए एक बार मैंने ऐसा लाया। ठीक है, देयर आर इवन पेरेंट्स जो बच्चों को हमेशा जताते रहते हैं कि अरे तुम्हारे लिए ऐसा मैंने किया, गलत किया, चोरी किया, ऐसा किया। अरे भाई क्यों की चोरी? नहीं करनी थी। और आपके लिए ऐसा किया, वैसा किया, ये जमा किया, वो जमा किया, मतलब ना वो बर्डन उन पर एहसानों का। मुझे लगता है कि जब हम अपनों के लिए कुछ करें तो बिना लालच के करें, बिना किसी जताने के करें, बिना किसी दिखावे के करें, बिना किसी उसको ईगो के करें, और बिना ये कि मुझे उन पर बाद में बर्डन डालना है, तुम्हारे लिए एक दिन ऐसा किया था, एक दिन ऐसा किया था, ऐसा किया था। और तीसरी बात दोस्तों की, जो मैं पहले भी एक वीडियो में बात कर चुका हूँ, जो जवान आज बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके हकूक़ मारे जा रहे हैं। जो घर में जवान बेरोज़गार बैठा है पढ़ लिख कर, उसको तो घर वाले तो ताने देते ही हैं, लेकिन रिश्तेदार फ़ोन कर करके और परेशान करते हैं। शादी कब है तुम्हारी? जॉब कब लग रही है तुम्हारी? तुम जॉब कब से स्टार्ट कर रहे हो? तुम ये क्यों नहीं करते? ज़बरदस्ती की अननीडेड एडवाइस, तुम वो क्यों नहीं करते? तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तुम वैसा क्यों नहीं करते? ज़बरदस्ती की नसीहतें यूथ को मिल रही हैं। और ऐसा नहीं है कि आज की यूथ ना समझ है, आज की यूथ पहले से बहुत समझदार है दोस्तों। मुझे आपकी आज की यूथ पे पूरा भरोसा है। और मैंने कल ये भी कहा एक वीडियो में कि दोस्तों, जब आप उन्हें हेयर क्रीम लगाते हुए देखते हैं और जब आप उन्हें अच्छे कपड़े पहनते हुए देखते हैं, फ़ौरन आप उन्हें जज कर लेते हैं, आवारा, पता नहीं क्या, इसको ये करना चाहिए था, इसको वो करना चाहिए था। आपको जो वो पीछे सफ़र करते हैं, जो उनके पीछे जो रिहर्सल है टू अपीयर गुड, टू लुक गुड, जो बैक स्टेज ऑफ स्टेज उनकी स्ट्रगल है, आप उसे नहीं देख पा रहे। आप सिर्फ जज कर रहे हैं यूथ को। कोई लड़की है, कोई हमारे रिश्तेदार है, मान लीजिए किसी का आपने देखा कि मेकअप, वो ये फलानी ब्रांडेड कपड़े, फ़ौरन आप जज कर लेते हैं, आवारा, बदमाश, इसके इतने बॉयफ्रेंड होंगे वगैरह वगैरह। एकदम जज, विदाउट थिंकिंग anything about human dignity, without even respecting youth today, without respecting generation Z। और ये हम क्यों करते हैं? बेसिकली अगेन जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो यही लोगों के बारे में डिसीजंस पास करो, फालतू की एडवाइसेस दो। मुझे लगता है कि हर एक जनरेशन का अपना एक लाइफस्टाइल होता है। आज की जनरेशन का जो लाइफस्टाइल है, उन्हें उनके लाइफस्टाइल के साथ जीने देना चाहिए। बिल्कुल उन्हें उनके लाइफस्टाइल के साथ जीने देना चाहिए दोस्तों। और उन्हें जज किए बिना उनकी स्ट्रगल्स को समझिए, उनकी पेन को समझिए। वो जो सफ़र करते हैं पीछे, वो जो ताने सुनते हैं अपने घर वालों के, अपने रिश्तेदारों के, उसे देखिए तो उसे कंसिडर तो कीजिए। वो भी इंसानी हकूक़ की पामाली है। Girls, today on International Human Rights Day, December 10, we have to realize many things. We have to understand human dignity in literal practical sense. We have to consider what dignity means and how it should be practiced. We literally have to understand, and we have to start from our own selves. आप घर में अपने स्पाउस को एक डिग्निफाइड ज़िंदगी अगर देंगे, आप घर में अपने डिपेंडेंट्स को अगर एक डिग्निफाइड ज़िंदगी देते हैं, यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन हु रिस्पेक्ट्स ह्यूमन राइट्स। मैं समझता हूँ अदालतों में आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको फलानी क्लॉज और आर्टिकल 15 उसके बाद A, B, C क्लॉज पता है या नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों।
ज़रूरी ये है जो आपके डिपेंडेंट्स आपके घर में हैं, जो आपके सिबलिंग्स हैं, जो आपका स्पाउस है, आप उनके हक अदा कर रहे हैं क्या? आप उनको खुश रख पा रहे हैं क्या? आप घर में ह्यूमन डिग्निटी, आप रिश्तेदारों में, अपने यारों दोस्तों में ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन किए हुए हैं? आप समाज में अपनी डिग्निटी को मेंटेन किए हुए हैं? और देयर आर पीपल जो सबकी डिग्निटी को बिला पूछे पामाल करते रहते हैं, और उन्हें यह लगता है कि ये हीरोइज्म, उन्हें यह लगता है कि इश्तमन तागान, दे आर स्मार्ट। देयर आर पीपल जो मैं कहता हूँ कि जो रिश्तेदारी में हो या घर में, जिनका एक टॉन्टिंग बिहेवियर होता है। एंड आई ऑलवेज से टॉन्टिंग इज नॉट ह्यूमर। टॉन्टिंग को कभी ह्यूमर मत कहिए। हु कीप टॉन्टिंग एंड हु कीप इन अ वे spreading that indignation in family, who keep attacking your dignity, very politely and with जिसे कहते हैं ना utmost impunity, who keep doing that, calling it humor. Taunting is not humor. Let us stop taunting, जिसे हम ह्यूमर का नाम देते हैं। तो आपको पता है कि जब किसी को हम टॉन्ट करते हैं और वो दिल पे ले ले तो उसके दिल पे क्या बीतती है। It's also not respecting someone's dignity. और अल्लाह का भी वादा है, जब आप किसी की डिग्निटी को वहाँ ख़राब करने की कोशिश करेंगे जहाँ उसकी इज़्ज़त हो, आपके साथ भी वही किया जाएगा। आपको भी वही बेइज्जती मिलेगी जहाँ आपकी इज़्ज़त हो। Therefore, वो जो है ना अदले का बदला, let us start respecting dignity as a word, as a term, as a concept, and let us start practicing dignity. That is the greatest message one can give on December 10. दिसंबर 10 को इंसान सबसे अच्छी मैसेज, सबसे बड़ी मैसेज ये दे सकता है, भाई साहब जो आपके घर में लोग हैं ना, आप उनके हुकूक आज समझिए, उनके हुकूक की पामाली ना होने दें। अगर आपकी माँ घर में सबसे नेग्लेक्टेड, इग्नोर्ड है, उसके लिए बोलिए, मुंह खोलिए। अगर वो आपसे हो रहा है सरजद तो संभलिए। अगर आपके भाई से हो रहा है तो उससे बात करिए। अगर आपकी बहन ऐसा कर रही है, भाभी ऐसा करे तो उससे बात करिए। अगर आपकी भाभी के खिलाफ, बहन के खिलाफ ऐसा घर में अत्याचार हो रहा है तो मुंह खोलिए। और इफ यू आर ट्राइंग टू एस्केप और हर बार आप एक डिप्लोमेटिक रूट इख्तियार करते हैं तो आप सा मुनाफिक कोई नहीं है। Therefore, there's a whole lot of violence. Violence is what? Violation of human rights, violation of one's dignity. There's a whole quantum of violence happening around the globe, in one form or the other, in n number of forms. मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बेड़ा उठाना है सारी वायलेंस दुनिया से ख़त्म करने का। अपने घर से शुरू करिए ना, आप अपने घर से शुरू करिए आज। If you are able to start it from your home and trying to make any difference at the very elementary level, at the very beginning, from your home until your kinship, friendship, then the larger community, आप जैसा फिर कोई नहीं है। आपने अपना हक अदा कर दिया, आपने अपना रोल अदा कर दिया। Therefore, respecting December 10 as International Human Rights Day is respecting gender, is respecting having that gender sensitivity, having that respect for women and girls. 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक, आज तक ये जो 16 दिन एक्टिविज़म के मनाए गए, यूनाइट फॉर एक्टिविज़म, UN विमेन द्वारा। दोस्तों मकसद क्या है? मकसद है ये जो हर 3 विमेन में से एक विमेन वायलेंस की शिकार है, उस वायलेंस को इन वन फॉर्म और द अदर, जी मैं देख रहा हूँ, उसको देखा जाए,
उसे एड्रेस किया जाए, तो उसे ग्लोबली आप एड्रेस नहीं करेंगे, लेकिन जब हम सब अपनी अपनी लेवल पे समझेंगे, इसे अपनी अपनी लेवल पे वायलेंस को एड्रेस करने की ठान लेंगे, तो भाई साहब कुछ भी नामुमकिन नहीं है। थिंग्स कैन बी टैकल्ड वंस वो सेंस प्रिवेल करे, वंस वो रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी आपके अंदर आ जाए कि नहीं जी, मेरे अगर हुकूक हैं तो मेरे घर वालों के भी हैं, मेरे घर में जो सबसे डिपेंडेंट है, कमज़ोर है, उसके लिए भी है। आई हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन्स डिग्निटी एट होम, एवरीवन्स डिग्निटी इन द फैमिली, इन द एक्सटेंडेड फैमिली। कभी किसी को आपके इतने से सपोर्ट की ज़रूरत पड़े तो खड़े हो जाइए ना सपोर्ट के लिए। आपने ह्यूमन राइट्स का मकसद वहीं पूरा कर दिया जब आपका रिश्तेदार हॉस्पिटल में एडमिट है और आप चले गए खबर पूछने के लिए, आप चले गए तीमारदारी के लिए, आप चले गए, थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी किसी को, आप चले गए हेल्प करने के लिए। तो ह्यूमन राइट्स आपके हाथ में है। ह्यूमन राइट्स के लिए इट इज नॉट सुप्रीम कोर्ट जो आपको आप अथोराइजेशन का वेट कर रहे हैं कि कब, ये तो मेरा मामला तो है ही नहीं, ये तो ये जाने सुप्रीम कोर्ट जाने। सुप्रीम कोर्ट नहीं, आप घर में खुद अपना सुप्रीम कोर्ट होते हैं। कभी कभार आप घर में सबसे बड़े होते हैं, आप क्या करते हैं? अत्याचार। वही बाहर जेंटलमैन और घर में जालिम, मॉन्स्टर। अगर बाहर जेंटलमैन है तो घर में भी जेंटलमैन बनिए ना। अगर घर में जेंटलमैन है तो बाहर भी जेंटलमैन बनिए फिरिए ना। अगर वर्क प्लेस पे आप बॉस हैं तो घर में अपने बच्चों को प्यार करते हैं, वर्क प्लेस पर भी तो बच्चे ही हैं जो आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ थोड़ी सी मोहब्बत बांटिए ना, उनके साथ थोड़ी शफकत से पेश आइए ना। वहाँ पे बॉसिज्म क्यों दिखाना आपको ज़बरदस्ती का? वहाँ पे सबके राइट्स पामाल करके खुद ही ह्यूमन राइट्स पे लेक्चर दोगे। ये दिक्कत है दोस्तों सिस्टम की, ये दिक्कत है आज के सोशल इंस्टीट्यूशंस की। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में जो लोग बात करते हैं, बाद में जब आप उनके साथ काम करते हैं ना, आपको पता है कि वो हर लम्हे ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन डिग्निटी को पामाल करते हैं। दिस हैज़ बीन आई मस्ट से जैसे कहते हैं जो सबसे बदकिस्मती है कि कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। थिंग्स आर डिफरेंट फ्रेंड्स। अगर हम सोशल लेवल पे, इवन इफ वी आर एबल टू टैकल वायलेंस एट द सोशल लेवल, जिसका एक होल क्वांटम फैला हुआ है, 400 फैला हुआ है, आपके सामने है। इट इज नॉट दैट इनविजिबल वायलेंस। And where you can make difference, you can make difference in your family, wherein you are a voice, if you try to, if you literally consider yourself as one, तो make that difference friends. And अगर आपकी वजह से एक के भी राइट्स बहाल हुए ना, अगर आपके वजह से एक फर्द के भी डिग्निटी बहाल हुई ना, आपने अपना ह्यूमन राइट्स का हक अदा कर दिया। आपने वो सारा हक अदा कर दिया। अगर एक फर्द की भी डिग्निटी आपकी वजह से बहाल हुई, रिकवर हुई, बिकॉज ये जो सब हम शायद फॉर्मल कानून पे कहते हैं कि जब ऐसा होगा तो या सरकार चाहेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। सोशल लेवल पे वायलेंस का क्वांटम देखिए ना, छोड़े पॉलिटिकल लेवल, छोड़िए गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लार्जर लेवल्स पे, मिलिट्री लेवल पे, वो बहुत बड़ी बड़ी लेवल्स हैं। Come to the level where you can make the difference when it comes to violation of human rights, violation of dignity of people, जो आपके हाथों होती है। कभी कभार आपके घर में होती है, आपके सामने, आप नहीं करते हैं, कोई घर का बड़ा करता है। But do you have the guts to speak? Do you have the guts to speak? Therefore, this is what we should be today on December 10, the International Human Rights Day. Human rights को घर से समझिए, ह्यूमन राइट्स को इंडिविजुअल लेवल पे समझिए, ह्यूमन राइट्स को फैमिली लेवल पे समझिए, ह्यूमन लेवल को किनशिप फ्रेंडशिप लेवल पे समझिए, ह्यूमन लेवल को सोसाइटल लेवल पे समझिए। बहुत दिनों बाद मैं दोस्तों इंस्टा लाइव पे आया, क्योंकि काफ़ी डिस्टर्बेंस रहता है, काम रहता है, विंटर भी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया
ज्वाइन करने के लिए, और आगे भी इंशाल्लाह बात किया करेंगे। आप सबको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे की मुबारकबाद, और साथ में ये नसीहत भी कि जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करें तो अपने अंदर झांकिए, देखिए मैं कहीं कल्प्रिट तो नहीं हूँ, कहीं किसी के राइट्स मेरी वजह से तो नहीं मारे जा रहे। कभी कभार हम वर्क प्लेस पे होते हैं तो हम मॉन्स्टर बन जाते हैं। वर्क प्लेस पे होते हैं तो हमें लगता है कि जो हमसे नीचे काम करने वाले लोग हैं अब ये हमारे नौकर हैं। ऐसा मैंने देखा, एक माइंडसेट है। नौकर नहीं है, जो सरकारी नौकर वहाँ काम करते हैं वो भी सरकार के नौकर हैं, आपके नहीं है। वालेकुम सलाम सारा। देयरफॉर आप उनके राइट्स पामाल करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जो घर में आपके डिपेंडेंट होते हैं आप उन पर अपनी हुकूमतें चलाते हैं और आप जताते हैं बाद में अगर आपने उनके लिए कुछ किया। अगेन यू आर रॉन्ग। और इसीलिए मैं कहता हूँ टुडे ऑन December 10 झांकिए अपने अंदर और देखिए आप किस तरीके के मॉन्स्टर हैं, देखिए आप किस तरीके के जो लोगों के जो हुकूक हैं जिनके साथ आपका टच है, आपने किस तरह उनको पामाल किया हुआ है। आप किस तरीके के दोस्तों मॉन्स्टर हैं, बिकॉज हम में कहीं ना कहीं वो मॉन्स्टर छुपा होता है। आमिर साहब लिखते हैं थैंक्स फॉर फोर्सिंग मी टू इंट्रोस्पेक्ट। दोस्तों बहुत सही कहा आपने आमिर साहब, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि ये नहीं कि लेट अस वेट फॉर द गवर्नमेंट टू रेस्टोर ह्यूमन राइट्स। दोस्तों लंबी बात है। वी हैव टू डिलीवर आवर पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स टू दोज जहाँ पे इंडिग्नेशन हमारी वजह से होता है, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स पामाल हमारी वजह से होती है, हमारे पावर से, हमारी पोजीशन से, हमारी अर्निंग से, हमारे वर्क प्लेस में बॉसिज्म से होती हैं पामाल। एज आई सेड, कभी कभार जो बॉस घर में बहुत शरीफ है, जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, फॉरेन ऑफिस में भी उसी के बच्चों जैसे लोग काम करते हैं, वहाँ वो मॉन्स्टर क्यों बन जाता है? ये शो ऑफ पावर के लिए ना, पावर शो के लिए। तो ये पावर शो में यकीन मत रखिए, ज़िंदगी बहुत ही फ्रेजाइल चीज़ है। लेट अस नॉट वो जो फिराउनियत टाइप ना उसमें यकीन ना करें। लेट्स नॉट वो जो ह्यूमंस कन्वर्ट हो जाए मॉन्स्टर में, उसमें यकीन ना रखिए। ह्यूमंस आर आफ्टर ऑल ह्यूमंस एंड एवरी ह्यूमन deserves respect. Every human, whether high, low, whatever in position, deserves what? Deserves dignity. Dignity at home, dignity at workplace, dignity at educational institution. हर तरीके का जो डिग्निटी है दोस्तों, वो डिग्निटी हमें बहाल करनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा कि हमारी वजह से किसकी डिग्निटी खराब हो रही है। आपके घर में कभी कोई ऐसा फर्द होगा जिसकी डिग्निटी आपकी वजह से, कभी सोचिए ना, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करिए ना, खुद को थोड़ा इन्वेस्टिगेट करिए ना, देखिए ना कि आपकी वजह से किसकी डिग्निटी खराब हो रही है, आप किसकी इज्जत नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे। कभी कभार आप अपने ही ईगो में मस्त हैं, कभी कभार आप गलत फहमियों के शिकार हैं, कभी कभार तो कहा सुनी में आपने फलानी ने आपसे ये कहा कि फलानी आपके बारे में ये कह रहा था, तो आपने उनके दिल में उनके लिए मलाल रख लिया। भाई आपने वेरीफाई नहीं किया। लोग तो मुनाफिक होते हैं। कोई भी आपके बारे में कल आपके भाई और आपके बारे में दरार डालना चाहे, कहा कि आपके भाई ने तो ऐसा कर दिया, ऐसा कर, और आप आ गए उनकी बातों में। रिश्तों की कदर करिए, रिश्तों का वैल्यू रखिए, मान रखिए, जिसे कहते हैं मान रखिए, और जताइए मत हमने आपके फलानी दिन ये किया ऐसा। और दूसरा जो मैं एक किनशिप लेवल पे कहना चाहता हूँ आपसे जाते जाते, कि देखिए डोंट लिव इन द पास्ट व्हेन इट कम्स टू रिबिल्डिंग किनशिप्स। रिश्तों में भाई बहन, अपने चचा मामू मौसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनमें अगर आप इफ़ यू लिव इन द पास्ट, वो ना जख्म कुरेदते रहते हैं। किसी ने आपके खिलाफ कभी कुछ किया, आप कहते हैं ये तो फलां दिन उन्होंने हमारे साथ ये, अच्छा नहीं इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, तो आप क्या करते हैं? रिश्ते तोड़ते हैं, जो नापसंद है इस्लाम में, जिसे नहायत ममनू करार दिया गया है। डोंट लिव इन द पास्ट। किसी ने क्या किया वो अलग बात है, बट मूव अहेड विद लव, स्प्रेड दैट मैसेज ऑफ लव। दैट मैसेज ऑफ लव इज इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स।
That's important. That's how you should live. That's how you should follow life. That should be your principle now. कि आपकी वजह से दोस्तों जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पे आपको सोचना चाहिए वो आज सोचे। जी किया था, आपने किया था। नहीं, हमने नहीं किया था। जी आपने किया था। नहीं, हमने नहीं किया था। जी मैं लाइव पे हूँ बेटा, आप चले जाइए। अरे मजा आ रहा है ना? चलिए। कैसे मजा आ रहा है? हाँ, आपने मुझे कॉल किया ना मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। अरे नहीं हुआ यार। हाँ हुआ। चलिए बेटा। जी दोस्तों, मैं आपसे ये कह रहा था जाते जाते कि जो दरारें हैं, जो लोग डालने की कोशिश करते हैं, या इफ़ यू लिव इन द पास्ट, यू लिटरली समटाइम्स लिव इन द पास्ट, उससे क्या होता है? आपका फ्यूचर खराब हो जाता है, आपका प्रेजेंट बदमिजाज हो जाता है। आपका प्रेजेंट इसलिए बदमिजाज हो जाता है कि यू लिव इन द पास्ट। किसी ने क्या किया, देखिए इंसान इवॉल्व होता रहता है। मुझे लगता है कि हम सब वक्त के साथ ग्रो करते हैं। हम सब लिटरली वक्त के साथ हमारे अंदर जो इमैच्योरिटीज़ होती हैं, जो हम ना समझ ना फहमी होती है, वो धीरे धीरे चली जाती है दोस्तों। अगर हम समझें, कुछ अच्छा करें, कुछ इम्प्रूव करें, अगर आपका कोई दोस्त इम्प्रूव कर रहा है, आपका कोई रिश्तेदार इम्प्रूव कर रहा है अपने कॉन्डक्ट में, उसे मौका दीजिए ना। मौका देने में क्या है? उसके आपके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, अब हैं, तो उसे पुरानी यादों में मत ले जाइए, पुराना वो जहर मत घोलिए, पुराने वो बिटरनेस में मत रहिए। स्प्रेड लाओ। किसी से गलती हो गई, ओके, इट्स ओके, लेट इट गो, लेट यू इग्नोर मेनी थिंग्स। और रिश्तों को अगर कायम रखना है तो बहुत कुछ इग्नोर करके चलना पड़ता है। और अगर आपने राइट्स को समझा है वाकई में, अगर आपने ह्यूमन डिग्निटी को वाकई में समझा है, तो उस ह्यूमन डिग्निटी के लिए बहुत बार आपको माफ़ करना पड़ेगा, बहुत बार आपको इग्नोर करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू लिव इन द पास्ट, you will never live in the present, you will never live in the future, that too happily. आप नहीं रहेंगे अच्छे मिजाज से। That's how it should be tackled. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। डिनर के लिए लगातार घंटियाँ बजाई जा रही हैं घर में, तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका प्यार स्नेह इसी तरह कायम रहे और इसी तरह हम सोशल इश्यूज़ पे वक्तन फवक्तन बात करते रहे। और सिर्फ बात करने का नहीं, मैं थियरी के बहुत खिलाफ हूँ हमेशा, सिर्फ थियरी। ज़रा सा आज का सेशन जो हमने अपनी लेवल पे इतना सा भी चेंज हो जाइए, बहुत है मेरे लिए। आप चेंज होकर देखिए। और मैंने जैसे कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर मॉन्स्टर नहीं है, हम सब के अंदर कहीं ना कहीं वो मॉन्स्टर आ गया है। कभी कभार दोस्तों मटीरियल लस्ट का, कभी कभार रिश्तों को इग्नोर करने का, कभी कभार ईगो को हाई ले जाने का, कभी कभार गलत फहमियाँ अपने दिल में पालने का। हमारे अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। उन मॉन्स्टर्स से बचिए, उन मॉन्स्टर्स को थोड़ा धीरे धीरे लेसन देम एंड बाद में डिलीट करिए अपने जहन से। एंड डोंट लिव इन द पास्ट। इस मैसेज को रिकॉर्ड करिए, डोंट नेवर लिव इन द पास्ट। जब आप किसी न किसी पुराने जख्मों को कुरेदते रहेंगे, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। प्रेजेंट में रहिए, क्योंकि पास्ट है जो गया, जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है। फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी आपके इख्तियार में नहीं है। प्रेजेंट तो आपके हाथ में है। इसमें तो अच्छे मिजाज से रहिए, इसमें कोई बदमिजाजी मत पालिए। प्रेजेंट में खुशहाल रहिए, प्रेजेंट में खुश खरम रहिए, प्रेजेंट में अच्छे रहिए, प्रेजेंट में सबके साथ अच्छा करिए। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।